quick look over the curriculum. This is your curriculum. This is your unit number 3, and the topics which I have highlighted, these topics I'm going to deal with in today's session. So for first hours or so, we'll be having discussions on primary data. As you can see, this is your unit number 3, data collection and analysis. So in this, we are going to have discussion on primary data and secondary data. So this is what at the outset I'm dealing with. In primary data, we are having a topic designing question and schedules. Then along with that, we are having checking consistency, reliability, and validity of data. So this topic will deal with tomorrow. Then in secondary data, we are going to have discussions on major sources of secondary data, and then journals, monographs, government publications, etc. And one of the what we can say the basic concepts in research, that is the research problem statement. So we are on to it now, and subsequently I will deal with some other topics from unit number 3. So for today, we are focusing on primary and secondary data, and I'm starting my discussions with primary and secondary data. So these are the brief contents of today's 3-hour session. So we'll start our discussions with having a contrast between primary and secondary data. What is primary data? What is secondary data? And what are the differences in primary and secondary data? Then we'll deal with the second topic, which is being mentioned in your curriculum, that is major sources of secondary data. Then subsequently, we'll have discussions on questionnaire and schedule. What is a questionnaire? What is a schedule? And then we'll have discussions on steps in designing questionnaire. So these 4 topics we are going to deal with today. So before getting into discussions, I just wish to clear one more thing, that the topics which are mentioned in unit number 3 and the topic precisely I'm going to deal with, these topics have got slight orientation towards survey based projects. So इसमें जो भी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरे मेरे 9 सेशंस में, इंसिडेंटली ऐसा हो रहा है कि ये सब टॉपिक के एप्लीकेशंस जो है ये सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा हैं। आपको मालूम है कि 4 मेजर मेथड्स होती है रिसर्च करने की, और उसमें से भी जो 2 बहुत ही कॉमन मेथड्स है, एक है एक्सपेरिमेंट बेस्ड मेथड और दूसरी होती है सर्वे बेस्ड मेथड्स। और मुझे जो टॉपिक डील करने हैं वो मोस्टली सर्वे बेस्ड एप्लीकेशंस में ज़्यादा रिलीवेंट है। और आपको मालूम है सर्वे ये जो प्रकार है रिसर्च का, ये खास करके यूज होता है सोशल साइंसेस में, इंटरडिसिप्लिनरी के सब्जेक्ट्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, ये ऐसे कुछ डिसिप्लिन्स है कि जहाँ पे सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट प्रीडोमिनेंटली किया जाता है। और जहाँ तक साइंस, टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस, एनवायरमेंटल साइंसेस, मटेरियल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, ये सब जो डिसिप्लिन्स है उसमें मोस्टली हम लोग एक्सपेरिमेंट बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स कंडक्ट करते हैं। और टॉपिक यूनिट नंबर 3 जो मैं डील कर रहा हूँ, इसके सभी टॉपिक्स ज़्यादा रिलीवेंट है सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट में। तो दिस इज जस्ट अ डिस्क्लेमर फ्रॉम माय साइड, बट स्टिल देखते हैं कुछ मैं खास करके जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनके लिए कुछ अगर इनपुट्स दे पा रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा। यहाँ से आगे 2 ऑब्जेक्टिव्स माइंड में रखेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली कि मैं जो भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको ठीक से समझ जाए, मीन्स आई विल ट्राई टू फैसिलिटेट विथ यू द विथ रिगार्ड टू द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक्स विच आई एम गोइंग टू डील विद। क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग इसलिए ज़रूरी है, ये आपको रिलेवेंट है नहीं है आई एम नॉट श्योर, बट ये सिलेबस में है तो हम लोगों को डिस्कस करना है। और आपको भी मालूम है कि आपको एक एग्जाम अपीयर करनी है बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर सिलेबस, और आपको वो क्रैक भी करनी है। तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव वही रहेगा कि मैं आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूँ, ये जो टॉपिक्स मैं डील कर रहा हूँ, सो दैट यू शुड फील कंफर्टेबल राइटिंग योर एग्जाम एंड क्रैकिंग योर एग्जाम्स एज वेल। और दूसरा एक ऑब्वियस पर्पस ये रहेगा कि आप रिसर्च कर ही रहे हैं तो उसमें अगर मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर पा रहा हूँ जिसकी वजह से आपके पीएचडी प्रोजेक्ट की क्वालिटी अगर एनहांस हो सके, या आप में आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर हो कि आप अगर सही में रियल लाइफ में अगर मैं जो समझा रहा हूँ वो यूज़ करें, तो मुझे लगता है कि वो भी मेरा एक अनदर पर्पस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डेटा, ये टॉपिक से शुरुआत कर रहा हूँ मैं। पहले समझने की कोशिश करते हैं प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा यानी क्या। उससे पहले डेटा यानी क्या वो देख लेते हैं। आपको भी मालूम है रिसर्च करते वक्त डेटा हैज़ गॉट इट्स ओन इम्पोर्टेंस, और
पूरा का पूरा रिसर्च स्टडी डेटा के इर्द गिर्द ही तो घूमता है। तो आपको शायद डेफिनेशन तो मालूम है, पर मैं मेरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट टू स्टार्ट विथ लाइट स्टफ। सो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, जनरली डेटा गैदर करते हैं रिसर्च करते वक्त, एक्सपेरिमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट हो या फिर सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट हो। डेटा यानी क्या? बेसिकली दीज आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हम लोग जनरली गैदर करता है while conducting a research study. So data are simply facts or recorded measures or responses of certain phenomena you can say. देखिए, हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट दो प्रकार के होते हैं, आपको भी मालूम है। एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी बेस्ड होते हैं और एक्सपेरिमेंट्स फील्ड बेस्ड भी होते हैं, और सर्वे जो मोस्टली फील्ड स्टडी कहलाती है। तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेबोरेटरी में सपोज, तो आप कुछ इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेट्स, मशीन्स ये सब यूज कर रहे हैं, और आपने कुछ वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, और आप जो भी आपकी रीडिंग्स आ रही हैं उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड यू हैव ऑलरेडी प्री डिफाइंड कि रिकॉर्ड क्या करना है, तो जो जॉटिंग्स आप ले रहे हैं एक्सपेरिमेंट करते वक्त, वही आपका डेटा हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप सर्वे कर रहे हैं, आपने एक सर्वे फॉर्म तैयार कर लिया है जिसको हम क्वेश्चनेयर कहते हैं। वो क्वेश्चनेयर आपने पोटेंशियल रेस्पोंडेंट्स, जिसको हम टारगेट पॉपुलेशन कहते हैं, उसके ऊपर हमने एडमिनिस्टर कर लिया। एडमिनिस्टर का मतलब है हमने वो सर्वे फॉर्म जो है हमारे रेस्पोंडेंट से फिलअप कर लिया। तो वो जो फिल्ड इन फॉर्म्स रहेंगे उसी को हम डेटा कहेंगे। सो डेटा आर सिंपली रिकॉर्डेड मेजर्स, खास करके एक्सपेरिमेंट के सेंस में। और सर्वे करते वक्त आप जो सर्वे फॉर्म के रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करते हो, गैदर करते हो, उसको हम डेटा कहते हैं। वन ऑफ द peculiar feature of data is generally available in raw form. raw का मतलब है it is available in unprocessed form. हम डेटा गैदर करते हैं और डेटा को गैदर करके उसका एनालिसिस करते हैं। देखिए, सिंपल सी चीज़ है। हमने यहाँ डेटा गैदर किया, और डेटा गैदर करते वक्त ध्यान में क्या रखते हैं? हमारा रिसर्च का टाइटल, हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड, हमारे रिसर्च हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स, और ये तीनों से हम डिड्यूस करते हैं वेरिएबल्स। ये है हमारा ग्राउंड वर्क। ये ग्राउंड वर्क को ध्यान में रखते हुए हम लोग डेटा गैदर करते हैं, जिसको हम कहते हैं डेटा रिक्वायरमेंट्स। ये चीज़ें हमको बताती है कि हमारी डेटा रिक्वायरमेंट्स क्या है। आपने डेटा गैदर कर लिया, इस तरफ है हमारे रिजल्ट्स, जिसको हम फाइंडिंग्स कहते हैं या इंटरप्रिटेशंस कहते हैं। इसी को, यही से हम कंक्लूजन्स भी डिराइव करते हैं। अभी हमारे रिसर्च स्टडी में जो भी इंटरेस्ट रखता है वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता है। आपके रिसर्च प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट कौन लेगा? ऑब्वियसली आपके सुपरवाइजर्स, आपके एग्जामिनर्स जो आपका वाइवा लेंगे अलग अलग स्टेजेस पे, प्री सबमिशन वाइवा हो या आपका फाइनल वाइवा हो। बाद में स्टेक होल्डर्स, यानी जिस इंडस्ट्री के लिए आप काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री के लोग, जिसको मैं स्टेक होल्डर कह रहा हूँ, ये लोग जो है वो रेफर करेंगे इसको। नो वन जनरली रेफर्स टू दिस थिंग बिकॉज इट इज अवेलेबल इन रॉ फॉर्म ना, और ये जो है ये फाइन फॉर्म में अवेलेबल है। फाइन का मतलब है इट इज अवेलेबल इन प्रोसेस्ड फॉर्म, एंड these are available in more meaningful sense. ये जो है ये अनस्ट्रक्चर्ड है या डिसऑर्गेनाइज्ड है। ये जो है इट इज मोर अवेलेबल इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। अभी ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक बीच में स्टेप है जिसको कहते हैं हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस।
ओके, हमने रॉ डेटा गैदर किया, उसको मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो करते हैं उसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कहते हैं। और यहाँ पे जो रिजल्ट्स वगैरह हैं, दिस इज प्रिसाइजली व्हाट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन जो है, इट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग वगैरह। यानी क्या, ये सेंस में दो टर्म्स है, एक है डेटा और दूसरी इंफॉर्मेशन। सो डेटा इज टिपिकली अवेलेबल इन रॉ फॉर्म। डेटा काम करता है इनपुट के सेंस में, हमारे रिसर्च का इनपुट इज डेटा, एंड हमारे रिसर्च जो है ये आउटपुट है। और इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए हमको करना होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और ये हम सिस्टम जनरेटेड करते हैं यानी सॉफ्टवेयर यूज करके। Getting me? अभी ये जो पार्ट है हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा। यानी क्या, डेटा के प्रकार है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। इसमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, इसके डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि बात मुद्दे की करनी है ना, प्राइमरी सेकेंडरी क्या है। पर फिर भी ये तो मालूम होना चाहिए रिसर्च स्कॉलर को, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। आपने शायद क्वालिटेटिव डेटा क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में सुना होगा, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। आपने शायद मेट्रिक एंड नॉन मेट्रिक डेटा के बारे में सुना होगा। आपने शायद एक तीसरा कॉन्फ़िगरेशन आता है कॉन्टिन्यूअस डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा। उसी तरीके से और एक सेंस हमारे पास है, वो है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डेटा। अभी इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, एक एक लाइन में बता देता हूँ। क्वालिटेटिव, इट इज नॉन न्यूमेरिक डेटा। क्वांटिटेटिव, इट इज अवेलेबल इन न्यूमेरिक सेंस, यानी नंबर में जो एक्सप्रेस होता है। मेट्रिक, मेट्रिक वही सेंस वही है, मेट्रिक इज मोर अबाउट योर दिस थिंग न्यूमेरिक डेटा। और नॉन मेट्रिक इज अगेन काइंड ऑफ क्वालिटेटिव डेटा और कैटेगोरिकल डेटा इसको कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट डेटा इज काउंटेड डेटा। कंटिन्यूअस डेटा इज मेजर्ड डेटा। मेजर्ड का मतलब है कोई ना कोई इक्विपमेंट, गैजेट, मशीन्स यूज करके हम जो डेटा गैदर करते हैं उसको कंटिन्यूअस डेटा कहते हैं, इट इज मेजर्ड डेटा। डिस्क्रीट डेटा इज काउंटेड डेटा, कैटेगोरिकल डेटा। और हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है इस पे मैं एलैबोरेट कर रहा हूँ, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। पहले बात करते हैं प्राइमरी की। अभी डेटा जो है, तो आपकी आवाज जाते हैं सीखो। डेटा जो है ये अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये न्यूमेरिक फॉर्म में हो सकता है, ये नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में हो सकता है, या फिर ये कुछ फैक्ट्स, या फिर कुछ टिक मार्क के फॉर्म में जिसको हम लोग रेस्पॉन्सेस कहते हैं, कैटेगोरिकल रेस्पॉन्सेस। ये रैंक ऑर्डर के फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है। तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा। और एक जो कॉन्फ़िगरेशन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। पहले मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूँ। प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो रिसर्च स्कॉलर खुद कलेक्ट करता है। getting me? The data which is collected by research scholar means क्या, प्राइमरी डेटा, who collects primary data, research scholar himself collect data। ये कैसे करता है डेटा कलेक्ट, ये डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है, तो ऑब्वियसली जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे या फिर आप सर्वे कंडक्ट करोगे, तो उस वक्त जो डेटा रिसर्च स्कॉलर खुद कलेक्ट करेगा उसको हम प्राइमरी डेटा करेंगे कहेंगे। अब ये डेटा कलेक्ट क्यों किया जाता है, प्राइमरी डेटा कलेक्ट क्यों करते हैं, टू मीट रिसर्च नीड्स। और किसकी रिसर्च नीड्स, तो ऑब्वियसली
the topic at hand. टॉपिक एट हैंड, आप जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड डेटा जो आपने खुद कलेक्ट किया हुआ है, या तो एक्सपेरिमेंट करके या सर्वे करके, उस डेटा को हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। प्राइमरी डेटा इज अवेलेबल, फॉर्म अगर बात करेंगे, फॉर्म प्राइमरी डेटा इज अवेलेबल इन रॉ फॉर्म, अनप्रोसेस्ड फॉर्म, और प्राइमरी डेटा को हम फर्स्ट हैंड डेटा कहते हैं। फर्स्ट हैंड डेटा या इसको कहा जाता है ओरिजिनल डेटा। दिस डेटा, प्राइमरी डेटा, इज available in original form, the data which is not readily available elsewhere, the data which is to be collected by research scholar on his or her own, taking into consideration his own research needs. That particular data can be considered as primary data. Okay, abhi, as against this we are having secondary data. पहले बात करते हैं who will collect this. ये रिसर्च स्कॉलर खुद कलेक्ट नहीं करता है, इट इज बीइंग कलेक्टेड बाय समवन एल्स। अभी ये समवन एल्स कौन है? तो रिसर्च स्कॉलर छोड़ के बाकी किसी ने ये कलेक्ट किया, इन द सेंस कि ये डेटा जो है, इसका एक कीवर्ड आप कहीं नोट करके रखेंगे, दिस डेटा इज कॉल्ड एज रेडीली अवेलेबल डेटा। ये डेटा कहीं ना कहीं रेडीली अवेलेबल है, और ये डेटा किसी और ने कलेक्ट किया, किसी और ने यानी ये कोई दूसरा रिसर्च स्कॉलर हो सकता है जिसने आपके टॉपिक से मिलते जुलते टॉपिक पे रिसर्च किया हुआ है। ये कोई गवर्नमेंट बॉडीज हो सकती है, कोई प्राइवेट रिसर्च एजेंसीज हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, कोई यूनिवर्सिटीज हो सकती है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, या कोई एनजीओज हो सकते हैं जिन्होंने ये डेटा, जो रिसर्च स्कॉलर खुद कलेक्ट नहीं कर रहा है। रिसर्च स्कॉलर को है, Excuse ये me, sir. डेटा कलेक्ट क्यों करते हैं? Excuse me, sir. Sir, voice break हुआ था. Could not hear. अच्छा, अभी क्लियर है सर? हाँ सर, बीच में अभी इसके पहले आपने अभी जो clear है, सर्च, जी सर। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा ये बारिश हो रही है ना सर यहाँ पे, शायद नेटवर्क का इशू होगा कुछ। ओके, आई थिंक अभी क्लियर है, तो मैं प्रोसीड करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि सेकेंडरी डेटा कलेक्ट क्यों करते हैं। तो ऑब्वियसली एज ए रिसर्च स्कॉलर हम लोगों को एक थीसिस में चैप्टर नंबर 2 प्रिपेयर करना होता है, जिसका नाम है लिटरेचर रिव्यू। ये चैप्टर नंबर 2 लिखने के लिए हम लोग सेकेंडरी डेटा जनरली कलेक्ट करते हैं। अभी लिटरेचर रिव्यू में हम लोग क्या करते हैं? लिटरेचर रिव्यू में हम जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं उस टॉपिक से मिलते जुलते या रेलिवेंट स्टडीज जो है हम सर्च करते हैं, उनको डाउनलोड करते हैं, उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, उसकी एक समरी तैयार करते हैं, और हमारे पेपर में उसको साइट करते हैं और रेफरेंसेस जनरेट करते हैं। ठीक है? तो सेकेंडरी डेटा helps us in gaining insights over our own topic। यानी क्या? नॉलेज गेन करने के लिए कि हमारे टॉपिक पे, द टॉपिक एट हैंड, इस टॉपिक पे प्रीवियसली क्या स्टडीज हुई है वो हम पढ़ते हैं, समझते हैं, और हमारा नॉलेज एनहांस करने की कोशिश करते हैं। हम हमारे टॉपिक पे रिसर्च कैसे किया गया है ये जानने की कोशिश करते हैं, यानी तरीके क्या है, मेथड्स क्या है, हमारा टॉपिक कितने एक्सटेंट तक एक्सप्लोर हुआ है, हमारे टॉपिक में कौन से इश्यूज ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुके हैं,
कौन से इश्यूज ऐसे हैं जो अभी तक प्रीवियस रिसर्च स्कॉलर्स ने एक्सप्लोर नहीं किए हुए हैं, जिसको हम रिसर्च गैप्स कहते हैं। यानी लिटरेचर रिव्यू का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग रिसर्च गैप्स। रिसर्च गैप्स क्यों आइडेंटिफाई करते हैं? सो दैट वी शुड प्लग इन द एग्जिस्टिंग गैप्स, कि जो इश्यूज हमारे टॉपिक से मिलते जुलते जो है, जो एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, वो हम एज ए रिसर्च स्कॉलर आइडेंटिफाई करते हैं, और जो इश्यूज एक्सप्लोर नहीं हुए हैं वही इश्यूज हम टेकअप करते हैं, so that we can plug in the existing gaps and we can take the topic under consideration a step further, so that we can contribute into the existing knowledge on the topic at hand. This is one of the important purposes of conducting literature review. So secondary data helps us in doing this. सेकेंडरी डेटा बोलिए या फिर लिटरेचर रिव्यू, जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं, ये नॉलेज गेन करने के लिए, चीजों को समझने के लिए, इनसाइट्स लेने के लिए और रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई करने के लिए जनरली हम लोग करते हैं। अभी ये डेटा कलेक्ट कौन करता है? जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई और रिसर्च स्कॉलर्स ने कलेक्ट किया हुआ है या कोई गवर्नमेंट बॉडी एजेंसीज ये कलेक्ट किया हुआ है। इसका फॉर्म क्या है ये डेटा का? ये जो फॉर्म है इस पर्टिकुलर डेटा का, ये है आपका प्रोसेस फॉर्म। यानी क्या, ये जो डेटा है इट हैज ऑलरेडी अंडरगॉन सम सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग। यानी क्या, इसका एनालिसिस ऑलरेडी हो चुका है और ये फाइन फॉर्म में अवेलेबल है, और इसके रिजल्ट्स जो हैं, इसके रिजल्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। पर प्राइमरी डेटा ये रॉ फॉर्म में होता है। प्राइमरी डेटा को हमको कन्वर्ट करना होता है रिजल्ट्स में, ट्रांसफॉर्म करना होता है रिजल्ट से इंटरप्रिटेशंस में। पर सेकेंडरी डेटा जो है उसका प्रोसेसिंग ऑलरेडी हो चुका होता है, उसके रिजल्ट्स ऑलरेडी तैयार है और वो आप एक जगह उसको कंपाइल कर रहे हैं। यानी आपके टॉपिक से मिलते जुलते टॉपिक पे आपने 100 रिसर्च पेपर्स आइडेंटिफाई कर लिए, उसको रेफर किया, और यहाँ पे हम समरी बना रहे हैं ना, कि आपने 100 रिसर्च पेपर्स ढूंढ लिए आपके टॉपिक से मिलते जुलते, और एक पेपर ऑन एन एवरेज अगर 20 पेजेस का हम लोग कंसिडर करते हैं, तो हर एक 20 पेजेस के पेपर को हमको एक छोटे से पैराग्राफ में कन्वर्ट करना होता है। इसी को तो हम समरी कहते हैं। और ऐसे 100 समरी तैयार करके हम हमारा लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर तैयार करते हैं। यानी क्या, और ये समरी में एक इंपॉर्टेंट इशू, इसमें 5 पॉइंट समरी जाती है, पर ये मेरा टॉपिक नहीं है लिटरेचर रिव्यू का, पर इसमें 5 पॉइंट समरी बनाते हैं 20 पेजेस के पेपर की, और इसमें 5 पॉइंट में एक पॉइंट होता है रिजल्ट्स। यानी क्या, हम 100 लोगों के रिजल्ट्स को एक जगह कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट हम लोगों को एट ए ग्लांस ये पता चल जाए कि अभी तक ये टॉपिक किस हद तक एक्सप्लोर हुआ है। ओके, सो दिस इज द जिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। अभी बात करते हैं सोर्सेस की। जैसे प्राइमरी डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं, जैसे हमने हाउ ये चीज डिस्कस की थी, वही मैं अभी समझा रहा हूँ आपको कि प्राइमरी डेटा हम कलेक्ट कैसे करते हैं। हम एक्चुअली सर्वे कंडक्ट करेंगे या फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे या फिर इंटरव्यूज लेंगे या फील्ड में जाके ऑब्जर्वेशंस लेंगे आप। तो जो डेटा आप खुद कलेक्ट कर रहे हैं फील्ड में जाके या लेबोरेटरी में कुछ काम करके, तो वो प्राइमरी हो गया। अभी सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे, तो उसके सोर्सेस जिसका स्ट्रेट अवे मेंशन आपके सिलेबस में दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, हमको सेकेंडरी डेटा मेजर सोर्सेस, मैं अभी यहाँ पे हूँ। मैंने प्राइमरी डेटा यानी क्या ये समझाया आपको, मैंने सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या है ये समझाया अभी तक पिछले 20 मिनट में। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ जाने से पहले, यानी ये जर्नल मोनोग्राफ वगैरह ये सब समझा रहा हूँ अभी मैं, पर वहां जाने से पहले ये एक छोटा सा टॉपिक है रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मैं ये अभी कवर कर देता हूँ और इसको कंक्लूड कर लेते हैं। पहले प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में फर्क क्या है एक जगह में समराइज कर रहा हूँ, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता देता हूँ आपको क्या है, और उसके बाद फिर हम जाएंगे मेजर सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि डेटा के एग्जाम्पल्स या फॉर्म्स, ये न्यूमेरिक फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है, ये रेटिंग फॉर्म में, ये डिस्क्रिप्टिव नरेशन यानी टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, ये रेस्पॉन्सेज टू ओपन एंडेड क्वेश्चंस यानी पैराग्राफ के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, कोटेशन के फॉर्म में, फील्ड नोट्स के फॉर्म में, जो भी जॉटिंग्स आप ले रहे हो वो सब। इंफॉर्मेशन के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये टाइप्स ऑफ डेटा की हमने बात की थी। प्राइमरी डेटा के
ये जो की पॉइंटर्स है जो मैंने आपको बताया, इट इज फर्स्ट हैंड डेटा which is being gathered and assembled specifically for the research project at hand, which is being generally collected and gathered by the research scholar himself. Then this data is original in nature. Secondary data के highlighting points मैंने already आपको समझा दिया है. ये readily available data है, जो डेटा किसी और ने कलेक्ट किया हुआ है, ये कंपाइल किया गया है किसी और ने, किसी और पर्पज के लिए, यानी हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए ये सेकेंडरी डेटा नहीं कलेक्ट किया गया है. प्राइमरी डेटा जो है ये हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए, हमारे डेटा रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने खुद कलेक्ट किया हुआ है. बाद सेकेंडरी डेटा, इट हैज ऑलरेडी अंडरगॉन स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग, और सेकेंडरी डेटा जनरली स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है रिसर्च, किसी रिसर्च स्टडी को. यानी सेकेंडरी डेटा का इंपॉर्टेंस तो ये, खास करके मैं सेकेंडरी डेटा इज सिनोनिमसली आई एम यूजिंग इट विद लिटरेचर रिव्यू एक्टिविटी, कि हम लोगों को टॉपिक सिलेक्ट करना है या फाइन ट्यून करना है, वहां से लेके तो थीसिस कैसे लिखते हैं वहां तक, इसके बीच में जितने भी स्टेप्स आती है उसमें जनरली एलआर एक्टिविटी कम्स हैंडी. whenever we are clueless regarding anything, कि हाइपोथेसिस कैसे फॉर्मुलेट करने हैं, कितने फॉर्मुलेट करने हैं, ड्राफ्ट कैसे होता है, ये आपको जानना है, तो मुझे लगता है एलआर एक हैंडी एक्टिविटी है. ऑब्जेक्टिव्स कैसे ड्राफ्ट करते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए पीएचडी के प्रोजेक्ट में, जो भी आपको, यानी चैप्टर का सीक्वेंस देखना है आपको, कि इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड चैप्टर क्या आएगा, उसके बाद थर्ड चैप्टर, कितने चैप्टर्स होने चाहिए, कौन से ऑर्डर में, ऑन एन एवरेज कितने पेजेस का थीसिस होना चाहिए, सब सवालों के जवाब मुझे लगता है एलआर से क्लियर हो जाते हैं. तो एलआर, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनसाइट्स गेन करने के लिए, हमारी खुद की आइडियाज फाइन ट्यून करने के लिए, खुद को एजुकेट करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए हम लोग जनरली एलआर करते हैं, और एलआर स्टार्टिंग पॉइंट भी प्रोवाइड करता है किसी भी रिसर्च स्टडी को. ये कॉन्ट्रास्ट है जो अभी तक हमने डिस्कस किया था. प्राइमरी इज फर्स्ट हैंड डेटा, सेकेंडरी इज रेडीली अवेलेबल डेटा. ये डेटा कहीं ना कहीं अवेलेबल है, ये इंटरनेट में हो, इंटरनेट की वेबसाइट्स पे हो सकता है, या फिर बुक्स में हो सकता है, टेक्स्ट बुक हो या रेफरेंस बुक हो, जर्नल्स में हो सकता है, मैगजीन्स में हो सकता है, न्यूज़पेपर्स, रेडियो प्रोग्राम्स हो सकते हैं, टीवी पे कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, और यूट्यूब पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है. तो ये डेटा कहीं ना कहीं रेडीली अवेलेबल फॉर्म में है. यू आर सिंपली एज अ रिसर्च स्कॉलर, यू नीड टू search for it, you need to, identify the sources, and you need to retrieve it, you need to download it, and you need to cite it. This is what the secondary data is. प्राइमरी डेटा कलेक्ट कौन करता है, तो खुद रिसर्च स्कॉलर. सेकेंडरी डेटा कोई और कलेक्ट करता है. ये डेटा कलेक्ट क्यों करते हैं, तो हमारे प्रोजेक्ट की नीड्स को ध्यान में रखते हुए कलेक्ट किया जाता है. ये हमारी प्रोजेक्ट की नीड को ध्यान में रखते हुए नहीं कलेक्ट किया गया है. ये रॉ फॉर्म में होता है प्राइमरी डेटा, ये प्रोसेस फॉर्म में है जिसका एनालिसिस ऑलरेडी हो चुका है. ये कलेक्ट किया जाता है सर्वे करके या फिर एक्सपेरिमेंट्स करके, और ये कलेक्ट किया जाता है लिटरेचर रिव्यू एक्टिविटी परफॉर्म करके. और प्राइमरी डेटा को कलेक्ट किया जाता है, गैदर किया जाता है, और सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट नहीं करते, गैदर नहीं करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, इसको हम रेफर करते हैं, इसको कोलेट करते हैं एक जगह. तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो हमने अभी तक डिस्कशंस किए हैं. अभी मेरे ख्याल से कुछ रिसर्च स्कॉलर्स हो सकते हैं कि जो सोशल साइंसेस, कॉमर्स मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस इनके नहीं है. हो सकता है आप ह्यूमैनिटीज को बिलोंग कर रहे हो, या फिर लिटरेचर डिसिप्लिन को बिलोंग कर रहे हो, लैंग्वेजेस को बिलोंग कर रहे हो. तो इसमें कॉन्टेक्स्ट आता है प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स. हम जो साइंस, कॉमर्स मैनेजमेंट, सोशल साइंसेस के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, कॉन्टेक्स्ट ध्यान में लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा. और खास करके लैंग्वेजेस और लिटरेचर के रिसर्च स्कॉलर्स का कॉन्टेक्स्ट प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा ऐसा न रहते हुए प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स होता है. तो इसके बारे में एक दो लाइन बता देता हूं मैं. देखिए, इफ सपोज लिटरेचर को लेके कोई एक सर्वे कर रहा है, और इफ सपोज रामदास स्वामी जी ने जो दास बोध ये लिखी हुई है, इसके ऊपर कोई एक रिसर्च हो रहा है लिटरेचर मराठी भांग में, तो इस पर्टिकुलर वर्क दासबोध, इट इज इटसेल्फ अ लिटरेचर. ये एक बुक के फॉर्म में अवेलेबल है, और रिसर्च स्कॉलर इसके ऊपर ही रिसर्च कर रहा है, तो ये बन जाएगा प्राइमरी सोर्स. ये ओरिजिनल सोर्स है जिसके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है. तो ऑब्वियसली जो भी रिसर्च स्कॉलर इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये प्रोक्यूर करेगा वो,
और इसको पढ़ेगा, नो डाउट अबाउट दैट, और इसका रेफरेंस लेके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके ऊपर राइटिंग करेगा। पर इसके साथ साथ दास अबोध पे जो प्रीवियस रिसर्च हुआ है, जो फिर से लिटरेचर के फॉर्म में अवेलेबल है, जो किसी और रिसर्च स्कॉलर ने दास बोध के ऊपर रिसर्च किया हुआ है, ऐसे वो थीसिस हो सकते हैं या फिर रिसर्च पेपर्स हो सकते हैं, ठीक? तो ये लिटरेचर भी वो रेफर करेगा, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स यानी क्या, लैंग्वेजेस लिटरेचर के सेंस में कि जो लिटरेचर पे स्टडी हो रहा है वो ओरिजिनल सोर्स, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सोर्स। और इस पर्टिकुलर लिटरेचर के ऊपर जो ऑलरेडी रिसर्च हुआ है, रिसर्च और रिसर्च, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी सोर्स। तो ये कॉन्टेक्स्ट होता है और दोनों रेफर करते हैं हम लोग और फिर इसको दोनों को साइट करते हैं। ठीक है, इसके जो रिजल्ट्स हैं ये सेकेंडरी सोर्स के, इसको भी एक जगह कोलेट करना, इसको कोलेट करते हैं। So this is what usually the research scholar belonging to languages and literature they do, and they have got their own terminologies as primary source and secondary source. अभी इसी सेंस में थोड़ा सा इनपुट मैं दे देता हूँ और बाद में आगे के टॉपिक में जाते हैं। और मुझे ये इम्पोर्टेंट लग रहा है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का वर्कशॉप है और यूनिवर्सिटी की तरफ से एक गाइडलाइन, आपने शायद नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप जिस टॉपिक पे पीएचडी कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक्स पे आपको पीएचडी करनी है, ऐसा आपको रिसर्च आर्टिकल्स तैयार करने हैं। तो रिसर्च आर्टिकल्स है ना, रिसर्च पेपर्स, रिसर्च पेपर्स जो है आपको मालूम है कि ये रिसर्च पेपर्स जो है ये आपको पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश करने हैं। ठीक है? अभी रिसर्च पेपर ये दो प्रकार के होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट मैं इनपुट्स देने की कोशिश कर रहा हूँ। रिसर्च पेपर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पिरिकल पेपर और दूसरा एक प्रकार है जिसको कहते हैं रिव्यू पेपर्स या रिव्यू आर्टिकल्स। और आप जो आर्टिकल्स तैयार करोगे ये दोनों कर सकते हो। ठीक है? अभी इम्पिरिकल यानी क्या, इम्पिरिकल यानी प्राइमरी डेटा यूज करके जो आर्टिकल आप तैयार करोगे। तो अभी जो कॉन्टेक्स्ट डिस्कस कर रहे थे ना, प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा, आपको भी मालूम है प्राइमरी डेटा यानी क्या, हमारे रिसर्च स्टडी को ध्यान में रखते हुए जो डेटा खुद हमने कलेक्ट किया हुआ है उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। तो जो डेटा आपने खुद कलेक्ट किया हुआ है वो डेटा यूज करके अगर आप रिसर्च पेपर तैयार कर रहे हो तो उसको इम्पिरिकल पेपर कहेंगे। अभी इस तरह का रिव्यू आर्टिकल्स, रिव्यू आर्टिकल यानी क्या, सेकेंडरी डेटा यूज करके जो डेटा, सेकेंडरी डेटा यूज करके जो रिसर्च पेपर्स आप तैयार करोगे उसको रिव्यू आर्टिकल्स कहेंगे। यानी क्या, आपको भी मालूम है लिटरेचर रिव्यू हम सब करते ही हैं। ठीक है, और ये कंपलसरी एक्टिविटी है क्योंकि चैप्टर नंबर 2 आपका पूरा डेडिकेटेड है। एक जो मुझे बार बार क्वेश्चन आता है कि सर कितना लिटरेचर रिव्यू आपने करना चाहिए पीएचडी के लिए, तो ऐसा कहीं रिटर्न रूल तो है नहीं, और ऐसा कहा जाता है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और अपडेटेड भी होना चाहिए, लेटेस्ट। ऐसा कहते हैं कि पिछले 5 साल का आपने करना चाहिए लिटरेचर रिव्यू। अगर पिछले 5 साल में सफिशिएंट लिटरेचर नहीं मिल रहा है आपको, लिटरेचर सफिशिएंट नंबर ऑफ पेपर्स या थीसिस आपके टॉपिक से मिलते जुलते, वो अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप एक एक साल और पीछे जा सकते हैं। और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेफरेंस नहीं है टाइम का, ये बात है कंप्लीटनेस की। जहां तक मुझे लगता है कि आपने कम से कम 150 थोड़ा सा एग्जैजरेटेड लगेगा फिगर, पर करना चाहिए पीएचडी के लिए। हम लोग जब रिसर्च पेपर लिखते हैं, मेरी खुद की टीम है, हम लोग टीम में ही काम करते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हमेशा ही तैयार करते रहते हैं, दोनों रिव्यू आर्टिकल्स भी और एम्पिरिकल आर्टिकल्स भी। हाल ही में मैंने एक पेपर लिखा है, कल ही हमारा सबमिशन भी हुआ है शाम को, उसमें 21 पेजेस का वो आर्टिकल है और आपको शायद सुन के ताज्जुब होगा कि 120 हमने रेफरेंसेस दिए हैं वहाँ पे जर्नी में। तो 21 पेजेस के लिए अगर हम 120 दे सकते हैं तो डेफिनेटली आपका 250-300 पेजेस का अगर थीसिस है तो 150 तो बनता है, तो आपने उतना कर लेना चाहिए। और ये ना एक टेस्टिमोनी है, आप कितना तगड़ा लिटरेचर रिव्यू करते हो उससे ये पता चलता है कि आपने कितनी मेहनत की है, आपने आपके टॉपिक को कितना समझा है, कितना पढ़ा है, ये बताने का एक ही जरिया है। मुझे लगता है लिटरेचर रिव्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, पर रिसर्च स्कॉलर्स को मैंने देखा बहुत लाइटली लेते हैं इस एक्टिविटी को।
उनका मानना ये है कि कॉपी पेस्ट ही तो करना है उसमें पढ़ने की क्या जरूरत, ऐसा नहीं है। लिटरेचर रिव्यू एक बार तबियत से करके देखिए, आप अपने आप में एक अच्छा खासा वैल्यू एडिशन देखेंगे। आपकी आइडियाज पूरे थॉट प्रोसेसेस चेंज हो जाती है। और मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे आज तक किसी ने कभी कुछ समझाया नहीं है इस तरीके से। मैं जो भी थोड़ा बहुत रिसर्च के बारे में जानता हूँ, वो क्रेडिट गोज टू लिटरेचर रिव्यू। बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ मैं, जो भी टॉपिक्स या जो भी मेरे डोमेन है उसमें जो भी अच्छे एप्लीकेशन है वो मैं पढ़ता हूँ, उसी की वजह से मेरी आइडियाज क्लियर हुई है। और इसलिए मैं ऑथोरिटी के साथ बोल रहा हूँ, बिल्कुल सीरियसली ये एक्टिविटी को करिए। और मुझे लगता है कि एक ना पीएचडी करते वक्त हमारे सुपरवाइजर्स तो है ही हमको गाइड करने के लिए, नो डाउट अबाउट दैट, पर सुपरवाइजर को हर एक छोटी मोटी चीज नहीं पूछ सकते है ना। तो पूरे रिसर्च जर्नी के दौरान एक एक ऐसा मेंटर चाहिए होता है जो कंप्लीट हैंड होल्डिंग करे पूरे रिसर्च जर्नी में। और मुझे लगता है अगर आपके पास ऐसा कोई मेंटर नहीं है अस्तित्व में, तो लिटरेचर रिव्यू कैन वर्क एज ए मेंटर। या आप कुछ भी पूछिए, लिटरेचर रिव्यू के से मोस्ट ऑफ द सवालों के जवाब मिल जाते हैं। अभी हम लोगों को हमारे टॉपिक से मिलते जुलते टॉपिक पे आर्टिकल्स तैयार करने हैं, तो दो प्रकार के आर्टिकल्स के ऑप्शंस हैं। देखिए, अगर आपने हाल ही में टॉपिक रजिस्टर किया हुआ है और बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है आपका, तो आपको भी मालूम है सिनॉप्सिस का वाइवा जब हम क्लियर करते हैं तो उसके तुरंत बाद आपको, अगर आपके पीएचडी के टॉपिक पे काम करना है, तो शुरुआत तो लिटरेचर रिव्यू से ही होती है ना। मैं तो कहता हूँ पहला 1 साल, कम से कम 6 महीने, तो आपने लिटरेचर रिव्यू ही करना चाहिए। और ये इनिशियल स्टेप्स है रिसर्च के। एकदम से थोड़ी ना एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कल सिनॉप्सिस का वाइवा क्लियर हुआ और आज से हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऐसा जनरली नहीं होता है। पहले 6 महीने तो आपको, कम से कम 6 महीने बोल रहा हूँ मैं, वैसे तो 1 साल करना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू करना है तो इतना सारा डेटा आपके पास कलेक्ट हो जाएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ 150, कम से कम 150 बोल रहा हूँ मैं। आपने आपके टॉपिक से मिलते जुलते हैं 150 रिसर्च पेपर्स या थेसिस या कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग के आर्टिकल्स आपने डाउनलोड किए। अभी आपके पास इतना सारा डेटा कलेक्ट हो गया ना पहले 6 महीने में ही। तो इसको यूज करके जो आर्टिकल तैयार करेंगे उसको रिव्यू आर्टिकल कहते हैं। अभी इसमें ऑप्शंस क्या है? रिव्यू आर्टिकल 5 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है नरेटिव रिव्यू। नरेटिव रिव्यू यानी पीएचडी के लिए हम लोग जो समरी फॉर्म में लिखते हैं, चैप्टर नंबर 2, उसी को नरेटिव रिव्यू कहा जाता है। दूसरा जो है वो है कंसेप्चुअल रिव्यू। पर ये फर्स्ट टाइम रिसर्चर्स जनरली कंसेप्चुअल रिव्यू नहीं लिखते हैं। कंसेप्चुअल रिव्यू यानी क्या? कोई थ्योरी तैयार करना, मॉडल तैयार करना, उसको कंसेप्चुअल रिव्यू कहा जाता है। और जो सीजन्ड रिसर्चर्स होते हैं, खास करके सीनियर, वो लोग कंसेप्चुअल रिव्यू करते हैं। तो ये हमारे काम का नहीं है। तीसरा जो है यहाँ से हमारे काम के आता है। तीसरा है सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, जिसको एसएलआर कहा जाता है। चौथा है आपका मेटा एनालिसिस। और पांचवा प्रकार है आपका बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। ये 5 टाइप्स है। वैसे 7 या 8 है, पर बाकी इतने ज़्यादा मुझे रिलीवेंट नहीं लगता है। ठीक है, और उसके बारे में मेरा भी बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं है। मैं जो समझता हूँ ये 5। और इसमें भी हमारे काम के जो रिसर्च पेपर आप तैयार कर सकते हो, ये तो एक बिल्कुल बेसिक फॉर्म है जो आप जैसे आपका चैप्टर नंबर 2 लिखते हो वैसे के वैसा आप पब्लिश कर सकते हो, जिसको प्लेन रिव्यू आर्टिकल कहते हैं। और जो थोड़ा सा साइंटिफिक है वो है एसएलआर, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। इसके मैं वर्कशॉप्स भी लेता हूँ 5-5 दिन के। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सब। इसके फॉर्मेट्स थोड़े अलग होते हैं। आपकी इंपिरिकल पेपर में जो फॉर्मेट है उसको आईएमआरडी फॉर्मेट कहते हैं। और रिव्यू आर्टिकल जैसे सिस्टमैटिक, मेटा, इसके लिए जो इस पे 2 फॉर्मेट्स चलते हैं। एक प्रिज्मा होता है, वो सुन के शायद मालूम होगा, या फिर एक कोचरान का फॉर्मेट है इसमें। और मैंने जो आर्टिकल्स तैयार किए एसएलआर के भी किए मैंने, और मेटा एनालिसिस तो हम लोग प्रिज्मा पे ही काम करते हैं। प्रिज्मा अभी लेटेस्ट आया 2020 का वर्जन। एक कोचरान का फॉर्मेट है। कोचरान मुझे सुन के मालूम है, मैंने पढ़े पेपर्स पढ़े इसके, पर मैंने खुद काम नहीं किया अभी तक कोचरान पे। मैं ज़्यादातर प्रिज्मा पे ही काम करता हूँ। और खास करके यहाँ पे इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, सोशल साइंसेस, कॉमर्स, मैनेजमेंट के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं
उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये कंसेप्ट अभी भी इंडिया में तो नया है, इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें रिसोर्सेज थोड़े कम हैं, पढ़ाने वाले लोग थोड़े कम हैं। पर ये बहुत तगड़ी चीज़ है, इसमें इसको पब्लिकेशन वैल्यू है और बहुत अच्छे पेपर्स तैयार हो जाते हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके लिए ना ही आपको एक्सपेरिमेंट करना है और ना ही आपको सर्वे करना है, घर में बैठ के, जिसको डेस्क रिसर्च एक प्रकार आपको मालूम होगा शायद, या लाइब्रेरी रिसर्च इसको कहते हैं, ये है वो कि घर में बैठ के, खास करके कोविड की सिचुएशन में आपको, और हमने किया है, मैं और मेरी टीम ने कोविड की सिचुएशन में कहीं जा नहीं सकते थे, तो घर में बैठ के क्या कर सकते हैं, तो ये बेस्ट प्रकार है। सर आवाज नहीं आता है। इस पे काम किया हमने, मेटा तैयार किया हुआ है, और मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये सब। तो ये आप डेफिनेटली कर सकते हो अगर आप इनिशियल स्टेजेस में हैं। और लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर तैयार होगा ही शायद आपका, मेरे ख्याल से मुझे प्रीति मैडम भी बता रही थी कि कुछ लोगों सबमिशन पे है अभी थीसिस आपका। ऑब्वियसली आपका लिटरेचर रिव्यू वगैरह सब हो गया होगा, तो बिल्कुल क्विकली ये हो जाते हैं तैयार पेपर, क्योंकि एलआर ऑलरेडी आपके पास है, तो वो यूज करके आप ये कर सकते हो। तो ये मैंने एक एडिशनल इनपुट दे दिया आपको, रिसर्च पेपर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, और मुझे लगता है एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो बहुत ही रेलिवेंट है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये किसी किताब में या इंटरनेट की साइट में या बाकी और वर्कशॉप करोगे तो शायद ये इनपुट्स डिस्कस सर करेंगे। आवाज चलिए नहीं आ आप रहा। रिसोर्सेज पे। सर वॉइस फ्लक्चुएट हो रहा है। अभी क्लियर है क्या सर? हाँ, शायद अभी आ मेरा रहा है सर, फोन रिंग कर रहा था इसलिए। क्योंकि बीच में हाँ, मेरा म्यूट हो गया फोन था। रिंग कर रहा था इसलिए शायद वो। हाँ हाँ, सर एक डाउट ये है शायद। सर। एक्सक्यूज मी हाँ सर। सर, पूछिए ना। सर वो हाँ लास्ट पूछिए ना। आप जो कुछ बता रहे थे मेटा एनालिसिस, वो शायद आवाज नहीं आया, मैं पूछ भी नहीं पाया। हाँ, अच्छा मेटा अच्छा एनालिसिस और बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, आप शायद कुछ बोल रहे अच्छा। थे, उस हम लोग हाँ, कुछ। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूँ, ऐसा बोल रहे हैं क्या? जी सर, थोड़ा सा। ठीक है, आप कौन से डिसिप्लिन के हैं सर? सर इकोनॉमिक्स ह्यूमैनिटीज। ठीक है ठीक है। इकोनॉमिक्स में सर बनते हैं सर मेटा एनालिसिस, और इंसिडेंटली मैं खुद इकोनॉमिक्स वाला हूँ तो इकोनॉमिक्स में बनते हैं मेटा एनालिसिस के पेपर, मैं बता देता हूँ। और खास करके अभी जैसे सर 28 पार्टिसिपेंट्स थी। कि आपने हाँ अभी बोला था कंसेप्चुअल नरेटिव और सिस्टमेटिक, तो एसएलआर इज गुड, आई मीन इज मोस्टली एक्सेप्टेड, ऐसी कुछ बोल रहे थे आप, फिर हाँ, वॉइस ब्रेक करेक्ट। मैं ज्यादा अच्छा, ध्यान नहीं दिया। जी, तो अ, कुछ मेटा एनालिसिस और बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है। मेटा एनालिसिस पहले एसएलआर करते हैं सर। एसएलआर यानी क्या? एसएलआर वन लाइन डेफिनेशन, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसका 5 दिन का मैं पूरा वर्कशॉप लेता हूँ, इसमें पूरी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है सर। इसके मैनुअल्स आते हैं एसएलआर और मेटा के। ये 28 स्टेप की प्रोसेस है सर, जो भी 1 मिनट में समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर मैं बता देता हूँ कि ऐसी कुछ चीज एग्जिस्ट करती है रिसर्च पेपर लिखने के लिए, और इट इज मेकिंग राउंड्स अक्रॉस द ग्लोब। और जो अच्छी क्वालिटी के रिसर्च स्कॉलर्स है, दे आर लेवरेजिंग ऑन दिस। और मैं खुद, मेरी टीम काम कर ही रहे हैं ना, हम लोग एसएलआर का पेपर तैयार किया, हमने मेटा का भी किया हुआ है। एसएलआर में एक वन लाइन डेफिनेशन इसकी ये है कि इट इज अ रिसर्च ऑफ रिसर्च स्टडीज, यानी क्या, लिटरेचर रिव्यू यूज करके ही हम लोग उसमें से एक्चुअली बेसिक यहाँ पे फोकस जो है 2 कीवर्ड से एसएलआर के, हम एग्जिस्टिंग स्टडीज को डाउनलोड करते हैं, यानी रिसर्च पेपर्स को डाउनलोड करते हैं, और इसमें कम से कम आपको 30 पेपर लगते हैं, 30 पेपर्स। आप ये 30 पेपर्स की जो फाइंडिंग्स है उसकी समरी बनाएंगे और उसका सिंथेसिस, ये कीवर्ड्स है। अब ये कैसे करते हैं ये समझाने के लिए तो सर सॉफ्टवेयर में वगैरह जाना होगा, पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रीवियस स्टडीज के फाइंडिंग्स को हम समरी और सिंथेसिस तैयार करते हैं। और यहाँ से आगे, यहाँ पे ये जो है एसएलआर टेबुलर फॉर्म में, हम जो रिजल्ट्स आए हैं प्रीवियस स्टडीज के, स्टडी नंबर 1, स्टडी नंबर 2, इसका एक समरी चार्ट बनता है, इसमें मल्टीपल कॉलम्स होते हैं और आखिरी का कॉलम फाइंडिंग्स होती है। ओके, और इसमें ये स्टडी नंबर 1 की फाइंडिंग्स क्या आई है, 2 की क्या आई है, ऐसे 30 स्टडीज का आपने किया हुआ, जिसको हम कहते हैं समरी। अभी ये जो फाइंडिंग्स आई है, इसको यूज करके आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू, इसको कहते हैं मेटा एनालिसिस।
यानी क्या, एसएलआर में सॉफ्टवेयर यूज नहीं होता है। एसएलआर में डेटाबेसेस, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस यूज होते हैं। इसमें हम सिर्फ टेबल बनाते हैं, समरी टेबल, और ये पेपर पब्लिश होते हैं सर एसएलआर के। यहाँ से आगे जाना है तो ये जो आपने टेबल में काम किया हुआ है, यही डेटा लेके आप इसका एनालिसिस करते हो, जिसको मेटा कहते हैं, और ये करते हैं सॉफ्टवेयर से। अभी ये बहुत ही बढ़िया डिसिप्लिन है सर, एंड इट इज अपकमिंग डिसिप्लिन, और मैं खुद काम कर रहा हूँ ना, बड़ा मजेदार है सर। इसमें ना सर, आप अभी जानना चाहते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ 2 मिनट में। इसमें जैमोबी नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है जो मेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है। दूसरा एक सीएमए नाम से है सॉफ्टवेयर, ये फ्री है, ओपन सोर्स है, मेरे पास है भी। और इंसिडेंटली प्रीति मैडम जो है, उन्होंने मेरा ये वर्कशॉप किया हुआ भी है मेटा एनालिसिस का। सीएमए ये पेड है, पर इसका ट्रायल वर्जन मिल जाता है 24 दिन के लिए। ये भी बहुत ही तगड़ा सॉफ्टवेयर है। इसके साथ साथ एक मेटा इसेंशियल नाम से आता है, ये भी फ्री है। और इसमें आर स्टूडियो, आपको शायद मालूम होगा, आर स्टूडियो में लाखों लाइब्रेरीज है, ये भी आपको मालूम होगा। आर स्टूडियो में फैक्टोशाइनी नाम से एक लाइब्रेरी है, ये यूज करके मेटा एनालिसिस करते हैं। ये 4 बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है मेटा एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए, और अच्छे खासे लेवल का रिसर्च यहाँ पे हो जाता है। जहाँ तक बिब्लियोमेट्रिक का सवाल है, यानी लिटरेचर रिव्यू आप कर रहे हो, तो उससे बिब्लियोमेट्रिक के भी पेपर्स बनते हैं। इसमें की वही है, पहले एसएलआर ही करना होता है मेटा करने के लिए या बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करने के लिए। अभी बिब्लियोमेट्रिक यानी क्या है, क्योंकि मैं एक रियल लाइफ किस्सा बता रहा हूँ। मैं एक वर्कशॉप अटेंड कर रहा था, और देखिए, ये कोविड की सिचुएशन में पूरी दुनिया जो है ना, ये हमारे घर में आ चुकी है, और मैं एक्चुअली तरस रहा था ये सब सीखने के लिए। खास करके मुझे स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग सीखना था, बड़ी इच्छा थी बहुत दिनों से, पर वो संभव हो नहीं रहा था, क्योंकि इंडिया में बहुत कम वर्कशॉप्स होते हैं इसके, मेटा के हो या बिब्लियोमेट्रिक के हो। और ये खास करके यूएस, यूके, लंदन वगैरह, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, और वहाँ पे सब छुट्टी उट्टी डाल के जाना, पैसा खर्च करना, इट वॉज नॉट फिजिबल। पर कोविड की वजह से ये सब ऑनलाइन वर्कशॉप्स होना शुरू हुआ, और मैंने कोविड की सिचुएशन में, खास करके पिछले 1.5 साल की अगर बात करते हैं, तो मैंने 32 वर्कशॉप्स किए, और ये सब पेड थे। ठीक है? और उसमें जो एक्सपोजर मिला, यानी पिछले 15 साल में जो मैं रिसर्च में सोच रहा था कि यार यहाँ पे मैं जाऊँ और ये सब करूँ, जो पॉसिबल नहीं हो रहा था संभव, पर ये पिछले 1.5 साल में इतना सारा वैल्यू एडिशन जो 15 साल में नहीं सीखा, वो 1.5 साल में मैंने सीख लिया। और मैं आपको भी हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पीएचडी कर ही रहे हो, तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, और अच्छे खासे प्रोग्राम्स हो रहे हो। खास करके ये जो एक्सपर्ट्स है, ये बिल्कुल घर में बैठ के आप सुन पा रहे हो। यार मैं तरस गया था पहले, और आई एम सो हैप्पी कि दुनिया के बेस्ट लोगों को मैं पूरे 32 वर्कशॉप में सुन चुका हूँ। तो एक अलग ही प्लेजर आई डिराइव्ड इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स, यू कैन से। इसमें मुझे बिब्लियोमेट्रिक के बारे में मैंने 3 वर्कशॉप किए हैं प्रिसाइजली। उसमें एक वर्कशॉप में कर रहा था, इंडिया के ये एक हस्ती है, मैं नाम नहीं लूंगा, पर वो स्टालवार्ट माने जाते हैं इंडिया में बिब्लियोमेट्रिक के। वो एक किस्सा बता रहे थे उनके वर्कशॉप में, कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है। वो किस्सा बता रहे थे कि एक रिसर्च स्कॉलर मेरे पास आया, और वो बोल रहा था कि सर मुझे आपके अंडर पीएचडी करनी है, काइंडली ऑफर मी योर सुपरवाइजरी। तो सर ने कहा ये ओके बेटा, वैकेंसी इज देयर, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ और 1 महीना दे रहा हूँ, वो करके आ जाइए, तो मैं आपका सुपरवाइजरशिप लेने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने पूछा कि आपके दिमाग में कुछ रफ आइडियाज है क्या, कि क्या करना चाहते हो। तो हाँ सर बोले, मैं थोड़ा सा वर्कआउट करके आया हूँ कि टॉपिक मैंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उसको फाइन ट्यूनिंग करना है। तो सर बोले, जो भी टॉपिक आपके मन में चल रहा है उसको लेके आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करिए। तो वो बंदे ने ये टर्म शायद पहली बार सुनी थी, वो पूछ रहा था कि सर थोड़ा सा एलेबरेट करेंगे क्या करना है। तो सर ने बोला कि आप जिस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं, उस टॉपिक को लेके दुनिया भर में आप लिटरेचर, एक तो लिटरेचर सर्वे करेंगे, और लिटरेचर में आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि इस टॉपिक को लेके टॉप 10 की ऑथर्स कौन है। टॉप 10 की कॉन्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं इनको, या आपकी भाषा में ऑथर्स, बादशाह लोग जिसको कहते हैं ना, हर एक टॉपिक के अपने बादशाह लोग होते हैं, कि इनके टॉपिक को हम लोगों को साइटेशन देने ही होते हैं, कि कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन है। इन्होंने कहा कि टॉप 10
जर्नल्स कौन से हैं दुनिया में आपके टॉपिक पे पब्लिकेशन करने वाले? आप टॉप 10 साइटेशंस किसको मिले हैं और कितने मिले हैं, किसको और कितने? टॉप 10 कंट्रीज, कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज। कि सबसे ज्यादा काम कौन सी कंट्रीज ने दुनिया में किया है आपके टॉपिक को लेके, ओके? और ये सब और भी इसमें चीजें हैं, ये होमवर्क दिया। एंड यू वुड सिंपली बिलीव दिस कि वो बंदा सही में 1 महीने बाद आया था और ये पूरा काम करके आया था। और इसी चीज को हम कहते हैं बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। और इसमें ना एक्चुअली विजुअल प्रेजेंटेशन होता है। मेरे पास पिक्चर्स है, अभी थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे तो मैं ब्रेक में वो पिक्चर्स निकाल के रखता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस यानी क्या। ये विजुअल प्रेजेंटेशन होता है, इसके विजुअल मैप्स बनते हैं और इसमें सॉफ्टवेयर से डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर, एक जो मैं यूज करता हूँ वो है वॉसव्यूअर। मेरा एक काम चल रहा है अभी बिब्लियोमेट्रिक पे, पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये। वॉसव्यूअर नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है जो मेरा फेवरेट है, बाकी भी है सॉफ्टवेयर इसमें, पर ये मुझे बेटर लगता है, ये फ्री भी है। तो ये है सर। आप जो पूछ रहे थे कि एसएलआर, मेटा और बिब्लियोमेट्रिक, ये जस्ट मैंने ब्रीफ बता दिया। इसके तो 5-5 दिन के पूरे वर्कशॉप्स होते हैं सर। तो जैसे मैडम भी बता रही थी, मेरी रिसर्च विद्या नाम से मेरा खुद का इंस्टीट्यूशन है, मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ और ट्रेनर भी हूँ। और ऑनलाइन फॉर्म में मेरे वर्कशॉप्स चलते रहते हैं अलग अलग थीम्स पे। और रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में मैक्सिमम जो भी टॉपिक्स है वो मैं डील करता हूँ, इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सिनॉप्सिस, प्रिपरेशन वगैरह। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। हम लोग जा रहे हैं अभी Excuse me, नेक्स्ट। sir. हाँ मैडम पूछिए। Sir, could you please elaborate Prisma? अच्छा, ठीक है। ये मैडम हैंडबुक है प्रिज्मा का, ये प्रोटोकॉल इसको आप कौन से डिसिप्लिन के? Sir, chemistry, science ठीक। and technology. हाँ, केमिस्ट्री में यूज होता है मैडम मेटा। आपने सुना है मेटा के बारे में इससे पहले? No, sir. केमिस्ट्री में होता है मैडम मेटा एनालिसिस। आप थोड़ा सा जो सीजन आपके रिसर्चर्स हैं आपके फील्ड के सीनियर लोग, उनसे थोड़ा बात करेंगे, उन्होंने फॉर श्योर मेटा किया होगा। Yes. प्रिज्मा ये प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल यानी यहाँ पे स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस होती है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि 28 स्टेप प्रोसेस है मैडम। Okay. इट्स अ 28 स्टेप प्रोसेस, जिसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसके हैंडबुक्स आते हैं जिसमें 28 स्टेप प्रोसेस दी गई है कि आपको क्या करना है, स्टेप 1 से लेके स्टेप 28 तक ये आपको फॉलो करना है। और ये 28 स्टेप फॉलो करके आपको पेपर तैयार करना है। उसी पेपर को हम मेटा एनालिसिस पेपर कहते हैं। तो प्रिज्मा इज द हैंडबुक, इट्स अ प्रोटोकॉल। Okay. Thank you, sir. हेलो सर। हेलो सर। हाँ सर, राहुल सर। हाँ सर, ये आपने जो सॉफ्टवेयर बताया जामोवी और सीएमए, तो ये मैं भी अपने जैसे लाइफ साइंसेज में यूज कर सकती हूँ इसको 100%, 101%। डेटा एनालिसिस के? डेटा एनालिसिस के जैसे लिए सर फॉर सर जैमोवी में डेटा एनालिसिस होता है, सीए में तो सिर्फ ये मेटा के लिए ही है सर। आप जैसे लाइफ साइंसेस के हैं तो आप जैमोवी मेटा एनालिसिस के लिए 101% यूज कर सकते हैं। सीए में और ज्यादा प्रोफेशनल है, जैमोवी से भी बेटर है सीए में, पर वही है, उसका ट्रायल वर्जन मिलता है 24 दिन के लिए, पर ये आप यूज कर सकते हो। आप लाइफ साइंसेस में अगर पूछ रहे हो कि डेटा एनालिसिस अलग चीज है सर, मेटा एनालिसिस अलग चीज है। तो ये जो मैंने यस 4 सर, सॉफ्टवेयर मेटा आपको एनालिसिस। बताया, हाँ मेटा एनालिसिस के लिए हाँ, बिल्कुल 100% यूज कर सकते हैं सर जैमोवी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उससे भी बेटर सर, ओके सर। लाइक जो उससे बेटर जो है वो फैक्टो शाइनी है आर का लाइफ साइंसेस के लिए, या फिर सीएमए एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है सर। उसका सीएमए का लॉन्ग फॉर्म है ना सर, कॉम्प्रहेंसिव मेटा एनालिसिस वो सॉफ्टवेयर का नाम ही है सीएमए। जैमोवी मल्टीपर्पज है, उसमें मेटा एनालिसिस के फंक्शंस है जैमोवी में। मैं तो खुद जैमोवी यूज कर रहा हूँ सर, क्योंकि सीएमए का ओके ओके। अपना हाँ सर, लिमिटेशन जैसे है, पेड लिटरेचर, पेड है ना सर वो। ये सर रिव्यू पेपर में जैसे अलग अलग जगह की इंफॉर्मेशन जैसे डालते हैं, तो वहाँ पे हाँ भी अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे स्ट्रक्चर वगैरह को एनालिसिस करने के लिए जैसे इन सिलिको एनालिसिस डालते हैं पेपर में, हाँ तो उसके लिए ये यूज कर सकते हैं? सर, मेटा के लिए मैं खुद यूज कर रहा हूँ जैमोवी, उसमें कोई डाउट नहीं। पर आप जो टेक्निकल सेंस में बात कर रहे हैं उसके लिए मैं मेटा के सेंस में बात कर रहा हूँ। मेटा में आप 101% यूज कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर बाकी आप जो फर्दर टेक्निकल एनालिसिस बोल रहे हैं उसके लिए कितना यूजफुल रहेगा, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है सर, क्योंकि मैंने वो किया नहीं है। ओके ओके ओके।
ओके। चलिए मैं सोर्सेस के बारे में बता देता हूँ क्योंकि हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस एंड मेजर सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा ये है। तो मैं सोर्सेस बता देता हूँ आपको। यहाँ समझा देता हूँ मैं। सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा ये दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस एंड नॉन इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है ये इंटरनेट का यूज करके आप लिटरेचर ढूंढ रहे हो, जो आज की डेट में मैं रिकमेंड भी करता हूँ। नॉन इलेक्ट्रॉनिक यानी आप फिजिकली विजिट कर रहे हो लाइब्रेरीज को, आपके खुद के कॉलेज की लाइब्रेरी होगी या डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी या फिर आपके इंस्टीट्यूशन की सेंट्रल लाइब्रेरी या फिर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी या फिर ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरी को आप फिजिकली विजिट कर रहे हैं और वहाँ पे जो भी जर्नल उन्होंने सब्सक्राइब करके रखे हैं, जो भी बुक्स है उसको आप रेफर कर रहे हो। तो आपको भी मालूम है इसका अपना एक लिमिटेशन है कि वो पर्टिकुलर लाइब्रेरी में जो भी रिसोर्सेस है बस उतने ही आप एक्सप्लोर कर पाओगे, यानी जितने बुक्स है बस उतने ही आप देख पाओगे। और इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस में ये लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं ओवर नॉन इलेक्ट्रॉनिक। एक तो सबसे बड़ा कन्वीनियंस, आप रात को 2 बजे भी अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज के थ्रू, घर में बैठ के कर सकते हो। टाइम कन्वीनियंस इज ऑलवेज देयर। और बहुत बार इकोनॉमिक पे होता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है इसका डेटाबेस, ये लिमिटेड डेटाबेस होता है यहाँ पे लिमिटेड डेटाबेस है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज का। इसमें फिर से दो चीजें हैं। इलेक्ट्रॉनिकली अगर आपको लिटरेचर ढूंढना है तो इसके दो प्रकार, एक होते हैं सर्च इंजिन्स या पोर्टल्स कहिए आप, और दूसरे हैं आपके डेटाबेसेस या जिनको रिपोजिटरीज भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरीज। अभी मैं थोड़ा सा सर्च इंजन बता देता हूँ पहले और फिर डेटाबेसेस बता देता हूँ और इसमें कैसे करना है वो भी समझा देता हूँ। 3 सर्च इंजन मैं अभी बता रहा हूँ आपको जो आसानी से आप यूज कर सकते हो। बहुत सारे हैं वैसे, और क्या क्या करेंगे ना जो आसानी से कर सकते हो वो बताता हूँ। सबसे पहला रिकमेंडेड गूगल स्कॉलर, जो आपको सुन के मालूम होगा और आपने किया भी होगा यूज। ठीक है, हम रिसर्च स्कॉलर से प्लेन गूगल नहीं करेंगे, हम गूगल स्कॉलर ये डेडिकेटेड सर्च इंजन है हमारे जैसे रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, गूगल का वो यूज करेंगे। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी, बहुत बढ़िया है। आपने शायद मुझे मालूम नहीं यूज किया है कि नहीं किया, पर कुछ फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी के से बेटर लगे गूगल स्कॉलर। यहाँ पे सर्चिंग के ऑप्शंस होते हैं, मैं गूगल स्कॉलर। सबसे बड़ी बात ये है कि गूगल स्कॉलर के बारे में आपने सुना होगा, यूज किया होगा, पर इसको ना यूज करने का तरीका है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें ना एडवांस सर्चिंग के ऑप्शन है, पर माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक में एडवांस सर्चिंग के ऑप्शंस बेटर हैं। अगर टाइम रहा तो मैं इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, लेट अस सी। और तीसरा जो है वो क्लैरिवेट, आपने शायद रिसर्च गेट के बारे में सुना होगा। ये तो हमारी जैसी कम्युनिटी के लिए ही डेडिकेटेड है रिसर्च गेट, आपने सुना होगा शायद क्लैरिवेट के बारे में। और इसको लॉगिन लगता है, इसको लॉगिन की जरूरत नहीं है। ये तो डायरेक्टली ओपन करिए और कीवर्ड फीड करके सर्चिंग करिए, यहाँ लॉगिन लगता है और इंस्टीट्यूशनल डोमेन का लॉगिन लगता है। ये सिर्फ इसका लिमिटेशन है। अगर ये है तो फिर ये बहुत तगड़ा है वैसे, अच्छा खासा मटेरियल रिसर्च गेट पे मिलता है। बाकी रिपोजिटरीज है जिनसे उसके बारे में फिर बात नहीं करें। दूसरी एक रिपोजिटरीज बता देता हूँ आपको, जो डेटाबेसेस कहते हैं, ई डेटाबेसेस, या इसको
रिपोजिटरीज या फिर ई रिसोर्सेस कहते हैं। इसमें राइट ऑन द टॉप इज स्कोपस। ये दुनिया का सबसे तगड़ा डेटाबेस माना जाता है स्कोपस। इसको लॉगिन लगता है ऑब्वियसली। ये पेड सब्सक्रिप्शन वाले होते हैं और इंसिडेंटली ये नागपुर यूनिवर्सिटी में नहीं है स्कोपस का डेटाबेस का लॉगिन। दूसरा है WOS वेब ऑफ साइंस, आपने सुना होगा शायद। ये सेकंड नंबर पे है। स्कोपस का डेटाबेस इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव माना जाता है, इसमें लगभग जहाँ तक मेरा नॉलेज है 42,000 जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पे डेटाबेस मिल जाता है 42,000। और ये जो है इसमें 28,000 लगभग है। ये धुंधला धुंधला याद आ रहा है, पर ये भी बढ़िया डेटाबेस माना जाता है वेब ऑफ साइंस। फिर डिसिप्लिन वाइज अगर बात करेंगे तो एमराल्ड, इनसाइट, उसके बाद आपने स्प्रिंजर के बारे में सुना होगा, या विले है, राउटलेज है। इसको हम टेलर एंड फ्रांसिस आपने सुना होगा शायद। बहुत सारे डेटाबेसेस है। एक जो आप जिस किसी कॉलेज में काम कर रहे हो उसमें फॉर श्योर होगा वो डेटाबेस में बता देता हूं आपको। इनलिस्ट के बारे में सुना होगा आपने। ये ना इनफ्लिबनेट का है। इनफ्लिबनेट का डेटाबेस है एनलिस्ट। और ये सब्सक्रिप्शन इसका थोड़ा सस्ता है, 5 से 6 हज़ार रुपये एक साल की फीस होती है इसकी। और गवर्नमेंट का है, इसलिए ये मैक्सिमम सभी कॉलेजेस में ये होता ही है। आप भी एक बार चेक कर लीजिए, आप जिस किसी कॉलेज में काम कर रहे हैं वहाँ पे फॉर श्योर होगा एनलिस्ट। मैंने तो जहाँ जहाँ जिस कॉलेज में पूछा है वहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स तो ये सर हाँ है हमारे पास, क्योंकि ये नैक के काम में वगैरह भी आता है, तो ये मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में होता है। इसको लॉगिन लगता है, आपके कॉलेज की जो लाइब्रेरियन होंगे वहां से आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। इसमें भी अच्छे खासे जर्नल्स का डेटाबेस है। उसके साथ साथ और भी एक जेगेट है, बहुत तगड़ा डेटाबेस है जेगेट का। और खास करके हमारे इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूशन जिसको आप IITs, IIMs और रीजनल कॉलेजेस कहते हैं, उसके उनके जो प्राध्यापक है, उनके जो रिसर्च पेपर्स है वो आपको जेगेट में मिल जाते हैं। पहले तो हम लोग भी थोड़ा सा जेगेट जैसे मैं अभी SLR का एक पेपर हमने तैयार किया था, SLR मेटा का, उसमें ये डेटाबेसेस यूज करने होते हैं ना। और आप जो थोड़ा सा क्यूरियस भी इसको लेके शायद, तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, तो आपको ये डेटाबेसेस से पेपर निकालने होते हैं और कम से कम 5 डेटाबेसेस आपने यूज करने चाहिए SLR मेटा के लिए। तो हम लोग भी देख ही रहे थे क्योंकि स्कोपस मिलना थोड़ा मुश्किल था, पर स्कोपस का यूज करना होता है। तो हमने तो कहीं और से किसी यूनिवर्सिटी से हमने वो जमा लिया स्कोपस का लॉगिन। पर बाकी डेटाबेसेस हमको इंक्लूड करने थे, तो हमने 7 यूज किए थे। एक्चुअली कम से कम 5 होने चाहिए, हमने 7 यूज किए थे। और पेपर्स हमने ढूंढे हमारे टॉपिक को लेके, तो उसमें 6 होने के बाद हम सोच रहे थे कि 7वां कौन सा डेटाबेस यूज करें। तो मैंने मेरी टीम को रिकमेंड किया कि यार जेगेट देख लेते हैं एक बार। तो मेरी टीम थोड़ी सी अवर्स थी कि सर जेगेट उससे बेटर देखते हैं एक आध कोई डेटाबेस। तो जब मैं इंजस्ट किया तो फिर हमने डेटा जेगेट पे ब्राउजिंग किया, और इंडिया वाले पेपर हम लोगों को यहाँ बेस्ट पेपर्स मुझे यहाँ मिले। तो आई गॉट कन्विंस यार कि बहुत ही बढ़िया तगड़ा डेटाबेस है, क्योंकि हम लोगों को बाकी स्कोपस WS में ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के पेपर्स मिल रहे थे, पर इंडिया के पेपर्स इंसिडेंटली मुझे जेकेट में अच्छे खासे पेपर्स मिले, तो हमने वो इंक्लूड भी कर लिया SLR मेटा में। तो ये कुछ डेटाबेसेस है। इसका एक्सेस कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मैं समझा रहा हूँ। उससे पहले और एक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। याद दिला रहा हूँ आपको, मेजर सोर्सेस की बात कर रहे हैं। इसमें ना हम लोगों को डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं, इसको रेफर करना होता है। तो आपको भी मालूम है डॉक्यूमेंट टाइप में हम लोगों को लिटरेचर रिव्यू भी जब करते हैं थीसिस के लिए, इसमें अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड करने होते हैं, जिसमें आप थीसिस का इंक्लूजन कर सकते हो। बाद में रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल एम्पिरिकल ही हम लोग इंक्लूड करते हैं, रिव्यू आर्टिकल्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। उसके बाद कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, इवन पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर्स हो, मैगजीन्स हो। उसके साथ साथ एक जो हम शायद अंडर एस्टिमेट करते हैं वो है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स यानी क्या? रिपोर्ट्स यानी
ये जो स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स मैं बोल रहा हूँ वो, या फिर एमफिल के प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आप कंसिडर कर सकते हो, वो भी हम लोग साइट कर सकते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट टाइप्स है जो आप साइट कर सकते हो। ये सोर्सेस इसके जो है थीसिस के लिए आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे। थीसिस के लिए शोधगंगा आपको मालूम होगा शायद, इनफ्लिपनेट का ही है और आपने किया भी होगा शोधगंगा, और ये इंडिया के सेंस में है। और दूसरा आप थोड़ा सा एक NPTEL नाम की साइट है, वहाँ पे जाएंगे तो यहाँ आपको कम से कम एक 15 कंट्रीज के जो रिपोजिटरीज है वो थीसिस की मिल जाएंगी यहाँ पे NPTEL पे। जैसे इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज है लगभग 756 यूनिवर्सिटीज है, जहाँ पे जहाँ तक मेरा नॉलेज है, लास्ट अपडेट जब मैंने लिया था 756 थी यूनिवर्सिटीज इंडिया में। उसमें से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने शोधगंगा यानी इन्फ्लिबनेट के साथ टाइप किया हुआ है, MOU किया हुआ है, और उनकी यूनिवर्सिटीज में जो PhD होती है उनके थीसिस शोधगंगा पे अपलोड किए जाते हैं, और यहाँ से फिर हम लोग इनको रेफर करते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन एक्सेस है, आपको भी मालूम होगा शायद। और शोधगंगा की खासियत यह है कि थीसिस में जो चैप्टर्स होते हैं हर चैप्टर के लिए सेपरेट PDF वहाँ पे है, और यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज ब्राउजिंग कर सकते हो शोधगंगा में। अच्छा सर्च इंजन है, डेटाबेस मिल जाता है हम लोगों को। ये तो हो गया इंडिया के सेंस में, पर बाकी जो कंट्रीज है जैसे बांग्लादेश में क्या रिसर्च हुआ ये आपको देखना है, तो उनकी यूनिवर्सिटीज का भी अपना एक होगा। जैसे हमारे इंडिया में शोधगंगा है, वैसे हर एक कंट्री का उनकी यूनिवर्सिटीज में जो रिसर्च होता है उनके अपने अपने कुछ पोर्टल्स हैं। तो वो 15 लगभग मुझे याद है NPTEL में 15 कंट्रीज के पोर्टल की गेटवे की लिंक मिल जाती है। अभी टाइम थोड़ा कम है, अदरवाइज ये सब करके दिखाया होता मैंने। तो यहाँ पे हाइपर लिंक पे गेटवे मिल जाता है आपको। जैसे कंट्री आएगी फ्रांस, तो फ्रांस में मेरे ख्याल से क्या नाम है उसका, क्या नाम है शायद एस्ट्रो या ऐसे कुछ तो भी। तो हर एक कंट्री का यहाँ पे वो गेटवे दिया है, नाम दिया है, जैसे अपना शोधगंगा है वहाँ पे नाम, और यहाँ पे हाइपर लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वहाँ पे पहुंच जाओगे आप। और एक थीसिस के लिए है इंटरनेशनल सेंस में OATD नाम से एक साइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। OATD का लॉन्ग फॉर्म है ओपन एक्सेस थीसिस एंड डिसर्टेशन, यहाँ से आप डाउनलोडिंग कर सकते हो। रिसर्च आर्टिकल के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल स्कॉलर या फिर ये राउटलेज, JGet, एनलिस्ट वगैरह जो मैंने रिपोजिटरीज बताया, एमराल्ड है यहाँ पे, बहुत सारे हैं। इवन एल्सवेयर एक छोड़ दिया था शायद हमने, साइंस डायरेक्ट। साइंस डायरेक्ट ये एल्सवेयर का ही वर्टिकल है, शायद आपको मालूम भी होगा, बहुत तगड़ा डेटाबेस है। तो ये सब आपके रिसर्च आर्टिकल्स के रिपोजिटरीज हैं। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ इसको सर्च कैसे करते हैं। प्रीति मैडम, प्रीति मैडम यस आप है सर। वहाँ पे? यस सर। मैडम ये डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए कम से कम एक 20-25 मिनट लगते हैं, तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं मैडम, वाटर ब्रेक। हो सर, हो, चालेल चालेल, 5 मिनिटाचा ब्रेक घेऊया. ठीक सर है। ब्रेक के बाद एक बार MS एकेडमी वो आप बताए सर्च इंजन क्या कैसे चीज सर? MS कौन सा सर? एकेडमिक MS एकेडमी का बोल रहे थे अच्छा अच्छा, MS एकेडमी, हाँ ठीक है ना सर। मीनवाइल ब्रेक में आप भी थोड़ा सा गूगल कर लीजिए MS एकेडमी, देखना। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे करते हैं।